Aliza. So this is the part of Boolean algebra, that is Karnaugh map. And Karnaugh map basically is the production of simplified circuit, not only simplified circuit, but the आपका जो एक सर्किट होगा या बूलियन एक्सप्रेशन होगी वो मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगी इफ यू यूज कार्नोफ मैप. बेसिकली कार्नोफ मैप किस तरीके से बनाते हैं और क्या करते हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस शुड कम इन योर एग्जाम दैट वी वुड सी. Before doing it, let's see, there are 3 inputs. If we have got 3 inputs, then based the rows and columns would be filled in the same way the way we have already done in logic gates. And this is the output. We are not dealing with how many inputs have been done, kaun se gates use mein kya hua hai. We are not discussing anything. The first thing that we need to do before doing Karnaugh map is min terms, और min terms के बाद हमने देखना होगा कि sum of product क्या है. अच्छा, अब min terms क्या होती है? min terms बेसिकली वो वाली चीज होती है, वो वाले आउटपुट होते हैं जहां पे हमें जितने भी आउटपुट्स हैं वो 1 मिल रहे हैं. ये हमारा आउटपुट है. ये जितना भी ऑरेंज कलर का पार्ट है, दिस इज एक्चुअली शोइंग min terms, and all these min terms would be the part of the sum of product. Sum of product is basically the Boolean expression that you usually use to simplify the whole circuit, that is written in the form of a truth table. So this is the truth table of the circuit, and based on this circuit we have identified the sum of product. How would you identify the sum of product? First you will see where the output 1 exists. Suppose this is one output. Based on this output we would identify the inputs. If the value of A is 0, then it means A not or A complement. But if there is any value that is written 1, seeing the inputs only, then it would be written without complement. So if you see all these inputs, just because this is showing one output, so it would show A naught, B naught and C naught. That would become the part of sum of product. Then we have got another one, and based on this one we need to see how the inputs would be written. So A, B are zeros and C is 1. So here A complement and B complement, and that's C. Then the third value, that is 1, it is again 1, that is the output. So we need to extract the sum of product expression, that is 0, 1, 0. So that means A complement, B and C complement. Then we would have another one, that means ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, this one is also done. हाँ, ये हमने कर लिए अभी तक के में. अब हमने देखना है ये वाला. To do this, Aliza, can you tell me how would you get the sum of product of this? A complement BC. A complement BC. Next, असद आप बताओ. असद, are you listening? हाँ, माइक चल रहा है सर. अच्छा, नेक्स्ट बताओ अलीजा तुम. आई थिंक असद का कुछ इशू है. अलीजा नेक्स्ट बताओ. A complement B C complement. नहीं बेटा, ये वाला करना है ना, ये तो तुमने बता दिया. अब ये वाला है A B C कॉम्प्लीमेंट होगा. A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट बताओ. A B C. अभी हम ये 2 कर चुके हैं. नेक्स्ट बताओ. A B complement. B कॉम्प्लीमेंट और C. जी. नेक्स्ट बताओ. A complement A B C complement. A B C कॉम्प्लीमेंट. और लास्ट वाला बताओ. A B C. क्या हम इन दोनों को करेंगे?
नहीं, इनके आउटपुट 0 है। इनके आउटपुट 0 है, तो इस वजह से हम इनको हटा देंगे, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड। तो अब देखो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक रह गया आई थिंक, लास्ट वाला मैंने इरेज कर दिया। जी। हाँ, वो क्या था हमारे पास, ये वाला था, ए A, B complement and C. So that would become sum of product. Sum of product is based on all the minterms that are showing the output 1. Is it clear so far? Now after doing it, we need to find out how would you make the Karnaugh map. To make Karnaugh map, what we need to do, हमने बनाना होगा number of inputs जितने भी हैं A, B and C, और उनका हमने देखना होगा व्हाट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए हमने क्या करना होगा कि वी नीड टू सी, हमारे पास दो तरह के कोड्स होते हैं। अगर हम देखें हमारे पास बाइनरी नंबर होता है कि एक बाइनरी नंबर है 1248 का, ठीक है, ये हमारे पास है 1 0 1 2 3। अब बेस्ड ऑन दिस अगर हम बाइनरी नंबर देखें, इसका है 00, इसका है 01, this 2 would be written in 10 and 3 would be written 11. This is actually the binary number. सही है? These binary numbers would be written in the same way, but Karnaugh map के अंदर हम इसको इस सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे। रीजन इसका क्या होगा, जिस तरह के हमने हाफ एडर फुल एडर में पढ़ा था, सॉरी फ्लिप फ्लॉप से पढ़ा था कि नंबर जो है 1 at a time should be changed. फॉर एग्जाम्पल अगर कि आपके पास यहाँ पे 0 है और 0, अभी मैं एक 0 को चेंज करती हूँ, सिर्फ इस वाले 1 को चेंज किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे I have changed only this one. One bit would be changed at a time. Now in the next set, this 1 would be carry forward और ये 0 would be changed to 1. सही है? एक वक्त में आपकी एक बिट चेंज होनी चाहिए। नाउ इन द नेक्स्ट थिंग आपके पास क्या है, दिस 1 वुड बी कैरीड फॉरवर्ड, उसी कलर में लेना था, और दिस वुड बी चेंज्ड। सो हैव यू सीन हियर both the bits? Now this has been carried forward, then this has been carried forward, and then this has been carried forward. Only one bit has been changed at a time. This is what we have done in the flip-flops. The same thing would be repeated here to make the Karnaugh map. In Karnaugh map, we need to change only one bit at a time. To change the bits one bit at a time, we have to change the sequence of it. This is basically, the denary number is actually 0. What is the denary value of this, Aliza? 1 इसका डिनरी वैल्यू क्या होगा? 3 और लास्ट वाले का क्या होगा? 2. तो we would follow this sequence in case of Karnaugh map 0 1 3 2. When we consider this sequence, तो तब हम करेंगे इसको, we will fill the Karnaugh map based on this sequence. यानी हमारे पास क्या होगा, अगर कि हमारे पास A और BC है इस तरीके से, मैं जरा ऊपर ले जाती हूँ, ये वाला अगर हमारे पास आउटपुट है, we will have this A and then BC is the combination that can be written here. तो हमने लेना है इसका Karnaugh map. To make Karnaugh map, there are few rules that you need to consider. The first rule is आपने ये जो नंबर्स लिखने होंगे, that should always be written in gray code. Gray code में जब आप लिखोगे तो the sequence would be in this way: 0 1 3 and 2. Reason being, one bit at a time should be written. यहाँ तक क्लियर है? जी। Okay, now after doing it, what we need to do, Karnaugh map के हमने अब देख लेने हैं कि अब हमने फर्दर किस तरीके से इसको फिल करना है। फिल हम इस तरीके से करेंगे कि हम अपनी जो भी मिन टर्म्स हैं या जो भी हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट है, उसकी बेस पे हम इसके अंदर रोज को या बॉक्सेस को फिल करेंगे। टू मेक इट इजियर,
आप क्या करो, जहां जहां 0 1 और 1 0 लिखे में, आप उनको बेस्ड ऑन द वेरिएबल दैट इज गिवन हियर आप उसको चेंज कर लो. फॉर एग्जांपल इफ इट इज रिटन b 0 0, तो इट मींस b एंड c बोथ आर कॉम्प्लीमेंटेड, क्योंकि दोनों 0 हैं. अगर कि यहाँ देखें, एक मिनट में चेंज कर दूं कलर इसका. देयर इज BC, ये पार्ट BC का. अब अगर हम देखें इसको फर्दर, देन दिस इज B complement and C complement. This would become B complement and C. This would be क्या होगा, ये क्या होगा, BC. that would be BC and the last one would be B and C B. complement. ठीक है. और ये हमारे पास A हो गया. अगर कि ये A है तो ये हो जाएगा A complement and A. ये भी हमारा ग्रेस कोड में 0 है. इसको ग्रेस कोड कहते हैं कि आपके पास 1 बिट कैन बी चेंज एट अ टाइम. ठीक है. और ये हमने फ्लिप फ्लॉप में कर चुके हैं ऑलरेडी. दिस इज 0 एंड दिस इज 1. सो 1 bit is being changed at a time, both in rows and columns, everywhere in the kernel. By locating all these things, now we need to see how would you place it. This is A complement, B complement, and C complement. Here is, this is A complement. Now you need to identify which column should be filled up. This is B and C complement. So this would be filled by 1. Why? Because this is A complement, B and C complement. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी. नेक्स्ट हमारे पास है A complement, B complement, C. तो A complement, B complement, C. This is the location where we need to fill this. फिर हमारे पास है A complement, BC complement, A complement और BC complement. ये वाला 1 fill हो जाएगा. This one is also done. Then A, BC complement, A, B complement and C complement. This is already done. ये वाला हो गया because both are the complements here. Then A, B complement, C, A, B complement, C. So far so good. वैसे आपने पहले वाला गलत किया. कैसे? A complement, B complement, C complement, तीनों complement है. तो ये भी complement है, ये भी complement है, ये भी complement है. आपने सेकंड लास्ट वाला. ये वाला नहीं, ये वाला इसके बराबर वाला. ये वाला it जी. says A, B complement, C complement. ये वाला कह रही हूँ ना. नहीं, इसके बराबर वाला. ये तो वाला जी. ये तो थर्ड लास्ट है. It says हाँ, A. तो ये वाला नहीं. अच्छा, A complement BC. मैं ये स्किप कर गया आई थिंक, है ना. जी. 1 2 3 4 5 है ना, 6 होने चाहिए. तो A, B complement, A complement ये रहा और BC रह गया. तो ये इस तरीके से फिल हो. यहाँ तक क्लियर है? जी. अच्छा, ये करने के बाद फिर हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको सम ऑफ प्रोडक्ट बनानी होती है. दैट वी हैव लर्न हाउ टू मेक द सम ऑफ प्रोडक्ट. व्हेरेवर यू फाइंड 1 in the output, you need to see how the inputs, what is the behavior of the input, and then based on that input we would have the sum of product. ठीक है. sum of product है इसलिए हम दरम्यान में प्लस लगाएंगे. Based on that sum of product we would identify how Karnaugh map would be populated. Karnaugh map populate करने के लिए you need to see whether the numbers are written in the grace code. Grace code means all the bits should be changed 1 at a time. So we have changed 1 bit at a time, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, in both the places, rows and columns. After doing it, then we need to populate it by seeing the sum of product. Sum of product is based, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी बेस पे हम इसके लिख के and then we have identified this. अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए. एक तो ये कि हमें सम ऑफ प्रोडक्ट बनानी है, दूसरा ये कि हमें कार्नोव मैप पॉपुलेट करना है. पॉपुलेट करने के बाद हमने इसके अंदर क्या करना होता है कि हमने इसको लूप करना होता है. लूप करने का पर्पस ये होता है ताकि हम बूलियन एक्सप्रेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर सकें. ठीक है. और हमारा सर्किट, अगर कि बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि हमारा सर्किट भी सिंप्लीफाई हो गया. और सर्किट सिंप्लीफाई होने का मतलब ये है कि फास्टर प्रोसेसिंग. सही है. तो अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि लूपिंग कैसे करेंगे. लूपिंग करने के हमारे पास कुछ रूल्स है और वो रूल्स क्या होंगे हमने देखने हैं कि सबसे पहले हमने देखना होगा कि क्या हमारा कार्नोव मैप
is following the rules, that is the gray code. Gray code follow हो रहा है? Yes. Number 1, this is the first thing to do. अगर कि ये ग्रे कोड इस तरीके से 0 1 2 3 वाले पे अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगी और यहाँ पे 3 लिख दूंगी, then it would be counted wrong. बात समझ आ रही है? Why am I emphasizing on gray code? Because अगर कि मैं यहाँ 1 0 लिख देती हूँ तो 1 0 का मतलब है ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया और ये 1 0 में कन्वर्ट हो गया. Both the bits have been changed simultaneously, but we don't want it in Karnaugh map. ठीक है? We have to follow gray code, the very first thing. So that's why we have interchanged the positions of 3 and 2, and now it has become 0 1 3 and 2. So far so good? Yes. Okay, after doing it, now we need to find out how many cells have contained 1 in it. ठीक है? अगर के blank spaces हैं, it means वहाँ पे 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है. ठीक है? अब 0 है, now we don't consider 0. We need to find out where the 1 exists in the cell. ठीक है? अब उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने उसकी बेस पे नंबर ऑफ वंस की एग्जिस्टेंस के ऊपर हमने लूपिंग करनी है. लूपिंग के लिए हमने क्या करना होगा कि हमने कॉलम वाइज भी देखना है और रो वाइज भी देखना है. हो सकता है पूरे कॉलम्स भी बन जाए और हमने कोशिश ये करनी है कि जितना बड़े से बड़ा ग्रुप बने, द बेटर द लार्जर ग्रुप वुड बी. ठीक है? तो जितना बड़ा हमारा ग्रुप बनेगा उतना हमारे लिए एक परफेक्ट अप्रोच होगी for the looping purpose or to simplify an expression. ठीक है? अब larger groups के क्या मतलब है? Larger group से मतलब ये है कि हमारे पास maximum number of ones आ जाए, but उसके लिए भी एक और criteria, and that criteria would be in a way कि we have to have number of ones with the power of 2. Power of 2 का मतलब ये है कि just in case if we have got 2 raised to the power 1, तो it means group of 2 ones. अगर कि हमारे पास है 2 raised to the power 2, तो it means we have to have group of 4 ones. सही है? और अगर कि हमारे पास है 2 raised to the power 3, तो हमारे पास क्या होगा? 6 हाँ 8. 8. ठीक है? अच्छा, एक हमारे पास होता है 2 की पावर तो 0 भी हो सकती है, और इसका मतलब क्या होता है? नो ग्रुप ना, अगर किसी नंबर के ऊपर 0 पावर होती है, इट मींस 1. तो 1 कैन आल्सो बी काउंटेड एज ग्रुपिंग पर्पस के लिए. ठीक है? अगर हमारे पास 2 4 8 के ग्रुप नहीं बन रहे तो वी फोकस ऑन इट कि अगर एक का ग्रुप बन रहा है हम उस एक का ग्रुप भी बना देते. समझ आ रही है? तो दैट कैन आल्सो बी काउंटेड. नंबर ऑफ वंस शुड बी एडजेसेंट. ऑल द नंबर ऑफ वंस शुड फॉर्म ग्रुप ऑफ पावर ऑफ 2. अगर कि 6 का ग्रुप बनेगा हम वो नहीं बनाएंगे. इट वुड बी डिस्करेज बिकॉज इट इज नॉट पावर ऑफ 2. पावर ऑफ 2 से हमने ग्रुप्स बनाने. अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें ग्रुपिंग करने के लिए तो मैक्सिमम ग्रुप क्या बन रहा है हमारा? लार्जेस्ट ग्रुप. लार्जेस्ट ग्रुप क्या बन रहा है हमारा? ये ए कॉम्प्लीमेंट वाली पूरी लाइन. ये वाली पूरी लाइन बन रही है. ठीक है जी. अच्छा, ये तो हो गया. हमने एक ग्रुप बना लिया और हमारे पास फर्दर ग्रुप्स मैक्सिमम. और हमारा कौन सा? अच्छा, ओवरलैपिंग इज आल्सो अलाउड. ठीक है? ओवरलैपिंग हम कर सकते हैं. और ओवरलैपिंग किस तरीके से करेंगे? अगर कि हमारे पास ये 4 का ग्रुप बन गया. अब देखो मजीद, ये तो हमने रो वाइज देख लिया. कॉलम वाइज हमारे पास कोई ग्रुप बन रहा है यहाँ पे? एक मेजर ग्रुप हमारे पास ये बन रहा है. मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ. एक हमारे पास मेजर ग्रुप ये बन रहा है. गॉट इट? एंड इट इज बीइंग ओवरलैप्ड. समझ आई? जी. सो जितनी मैक्सिमम ओवरलैपिंग हम कर सकते हैं हम करेंगे. और उसके बाद हम क्या करेंगे? अपना कार्नोफ मैप को सिंप्लीफाई करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सपोज हमने, यार मैं इसको मूव भी नहीं कर सकती. सपोज हमने ये बना लिया. ठीक है? हमने मेजॉरिटी ग्रुप्स अलग कर लिए. हमारे पास एक ग्रुप ये भी बन गया. एक ग्रुप हमारे पास हो गया ये वाला. एक ग्रुप हमारे पास हो गया ये वाला. एक ग्रुप हमारे पास हो गया ये वाला. ठीक है? वी हैव आइडेंटिफाइड सो मेनी ग्रुप्स.
अब इन ग्रुप्स की बेसिस पे हमने क्या करना है, हमने देखना है अपनी एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन किस तरीके से हम सॉर्ट आउट करेंगे कि हमारी एक्सप्रेशन जो है दैट वुड बी इन अ वे कि जो जो कांस्टेंट यहाँ पे है अगर कि वो सेम है, अगर कि वो चेंज नहीं हो रहा उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसको अपनी एक्सप्रेशन का पार्ट बना देंगे। और अगर कि कोई चीज डिफर कर रही होगी तो हम उसको माइनस कर देंगे, हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे। वी बेटर डू इट विद द एस्पेक्ट ऑफ अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, ठीक है, ताकि हम ये लास्ट पार्ट पहले हम अपनी सम ऑफ प्रोडक्ट निकालें, उसके बाद फिर हम कार्न ऑफ पॉइंट बनाएं, और उसके बाद फिर हम इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बना लें, ठीक है। सो वी बेटर गो टू द पास्ट पेपर एग्जाम्पल। ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। ये तो हमारा उसका है, इसको तो छोड़ दो। और ये कौन सा है, हाँ, कैन यू डू इट, फर्स्ट वाला इसका कार्नोफ मैप कंप्लीट करना है, कैन यू डू इट। मैं सर्च कर। हाँ, इसको ट्राई करो और मुझे इसका आंसर बताओ। मेक श्योर यहाँ पे देखो ए बी यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, ए बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है सी। सो इसी की बेसिस पे तुमने अपना सम ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसकी रोज को और कॉलम्स को फिल करना है। एंड टेल मी योर आउटपुट, देन वी विल मैच इट, और फिर हम इसको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनाएंगे।
Aliza, are you done? Hello, Aliza, you there? जी मिस। Have you done it? At least सिर्फ उसका मुझे रिजल्ट बताओ, फिर हम इसको लूपिंग कर लेंगे. मिस 1। यहाँ पे जी 1 यहाँ है. पे 1। अच्छा, और यहाँ पे 1 आएगा। ओके, देन यहाँ पे यहाँ क्या आएगा? 0। 0 और लास्ट में 1। अच्छा, और नेक्स्ट यहाँ पे 1 आएगा। 1 इधर, इधर भी 1 आएगा। फिर यहाँ 0 आएगा। मैं 0 आएगा। यहाँ पे 0 आएगा. अच्छा, और यहाँ 1 आएगा। ठीक है. नाउ लेट्स चेक इट आउट. 4 1s. अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या आया तुम्हारा इसमें, जरा मुझे बताओ. x इज इक्वल टू 1 4। नहीं, x इज इक्वल टू क्या आया है? सम ऑफ प्रोडक्ट 6। 6. क्या हो गया, मुझे वो बताओ ना. कहाँ कहाँ 1 है मिन टर्म्स की बेस पे? x इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट. a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट ठीक है, फिर प्लस a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c। a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c. सही है. फिर दूसरा क्या बनाया? a कॉम्प्लीमेंट, b, c a कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, b और c कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, फिर a कॉम्प्लीमेंट, b, c, a कॉम्प्लीमेंट, b c. ठीक है, b c और a कॉम्प्लीमेंट, b, c कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट, नहीं a a b और complement. ये b गलत किया। ये तुम यहाँ पे क्यों है, हमने ये देखना है ना. दैट्स a और फिर b c का कॉम्प्लीमेंट. सही है. फिर c कॉम्प्लीमेंट, हाँ, आगे फिर a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c. जी। ठीक है, ये हमारी हो गई सम ऑफ प्रोडक्ट. बिकॉज अब हमने मैच करना है ना, इसको आंसर हमने निकालना है, तो दैट कुड बी फाउंड आउट. तो ये हमारा ऐसे आ रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट. कर्नऑफ मैप हमने पॉपुलेट कर दिया. इसके करने के बाद द के मैप can be used to simplify the expression that produce the truth table in part A. Draw loops around appropriate groups of ones in the K-map to produce an optimal sum of product, while the simplified sum of product Boolean expression for the truth table. अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं मीटिंग रीस्टार्ट कर रही हूँ. बल्कि पहले हम लूपिंग कर लेते हैं, फिर मीटिंग रीस्टार्ट करेंगे, ताकि फिर नेक्स्ट पार्ट इसका बाद में कर लें. लूपिंग के लिए देखो, एक तो हमने देखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स. ठीक है. दूसरी एक चीज और हमने देखनी है यहाँ पे, कि जस्ट इन केस अगर हमारे पास कॉर्नर के नंबर्स हैं, ठीक है, ये जो कॉर्नर वाले नंबर्स हैं, अगर कि वहां पे 1 आ जाता, ये राइट वाले या कॉर्नर वाले, सपोज अगर कि ये वाला कॉर्नर है और यहाँ पे 0 है, तो हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ कंबाइन कर सकते हैं, या इस कॉर्नर को डायगनली भी कर सकते हैं और राइट और लेफ्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस वक्त मैक्सिमम सबसे बिगेस्ट ग्रुप कौन सा बन रहा है, जो लार्जेस्ट नंबर का? फर्स्ट 4 1। फर्स्ट 4 का हमने एक लूप बना दिया. ठीक है. अब हमारे पास ये 2 का बन रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि हम डायगनली और फार कॉर्नर्स को भी कंबाइन कर सकते हैं. तो एक हम बना देते हैं ये वाला ग्रुप, 2 + 2, 4 बन गए हमारे इसके भी. बस हम ये वाले बंच क्यों नहीं लेंगे इसके साथ? कौन से वाले?
इसके बराबर वाले जो आंसर है ये वाले 0 1 नहीं 0 1 के नीचे जाए। कहाँ है ये वाले? बस ये वाले जो तुम मुझे करके बताओ ना, तुम मुझे अपनी मेरी स्क्रीन पे लिख के बताओ कौन से वाले। ये दोनों वाले। नहीं देखो, हमने मैक्सिमम का ग्रुप बनाना है, मिनिमम तो 2 है ही है। हमने तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा ग्रुप बनाना है, तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा ग्रुप के लिए हमारे पास एक 4 हो गया, 4 हो गया। और फिर हमने इन दो चारों का भी बना लिया। बस अगर हमारे 4 4 के सेट बन गए दैट्स इनफ। हम क्यों 2 पे जाए? 2 और 1 पे हम हम 6 का हाँ, हम 6 का ग्रुप नहीं बना सकते। 6 का नहीं बना सकते क्योंकि 2 की पावर, अगर हम देखें कोई नंबर, अभी हमने देखा था कि 2 की पावर 0 होगी। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तब हम 1 का ग्रुप बनाएंगे। अगर 1 एक यहाँ पड़ा होगा, एक यहाँ पड़ा होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, कॉर्नर के ऊपर तो होगा तो हम इनको यूनाइट कर देते हैं। लेकिन अगर कि यहाँ 1 पड़ा हुआ है और एक 1 पड़ा हुआ है इधर, तो हम एक इसका अलग ग्रुप बना लेंगे और एक इसका अलग ग्रुप बना लेंगे सेपरेट। ये वो वाली वैलिड सिचुएशन है, ठीक है, समझ आई? ओके। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया एक और 2 रेज टू द पावर 1, तो उस सूरत में 2 के ग्रुप बन सकते हैं मिनिमम। फिर 2 रेज टू द पावर 2, उसकी बेस पे 4, 2 के पावर 8 सॉरी 3, तो उसमें 8, 6 तो कहीं एडजस्टेबल है ही नहीं ना, ठीक है। तो एक हमारा ये 4 का ग्रुप बना और एक हमारा 1 2 3 4 का ग्रुप बन गया। तो हमने लार्जर ग्रुप्स, हमने सेट्स बना लिए। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर कहाँ जा रहा है, क्योंकि फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने यही किए थे, 4 ये और 2 2 का ग्रुप ये इसी तरह किया था। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना होगा, सिंप्लीफिकेशन किस बेस पे करते हैं, हमने ये देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए बी दोनों कॉम्प्लीमेंट है, सही है, और यहाँ पे सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे है ए बी, और यहाँ पे ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। इज दिस द वे? तुम्हारे पास भी यही लिखा हुआ है। अब देखो कॉमन क्या है इसमें। अगर कि तुम इसको देखती हो, यहाँ पे देखो, इस पूरे सेट के अंदर हमने पूरे सेट को कंसिडर करना है। हियर द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ भी ए कॉम्प्लीमेंट, बट यहाँ ए और ए, इज ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन इन द होल ग्रुप, इन द होल लूप? जी यस, जो चीज कॉमन होगी तो हम उसको क्या करेंगे, हम सेपरेट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ आ गया एक ए कॉम्प्लीमेंट, सही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट को देखो, क्या ये कॉमन है? हियर इज बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे बी और बी, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। तो बी, इज बी का कॉम्प्लीमेंट कॉमन इन दिस केस? नो नो। तो हमने इस बी कॉम्प्लीमेंट को हटा दिया। क्या बी कॉमन है इन चारों, इस पूरे लूप के अंदर? जी नहीं, इन दोनों में बी है, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है, सो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड। जो कॉमन होगा हमने सिर्फ उसको निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट वाज कॉमन इन बोथ द केसेस, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, it was common in the whole loop, so I have extracted it out. B complement wasn't common because in these two cases there was B only. There is 1 here, so it means there is B. समझ आई? ओके जी ठीक है, समझ आ गई। सही है। और उसके बाद पे क्या C कॉमन है? बी कॉम्प्लीमेंट C यहाँ दोनों में है, लेकिन यहाँ दोनों में कॉम्प्लीमेंट है, C नहीं है,
तो यहाँ तक को तो हमारी एक्सप्रेशन बन गई। अब ये मीटिंग एंड हो रही है, मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ।